मैम Okay? पहले वो यूनिट 4 हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। नहीं, यूनिट 4 भी करेंगे, यूनिट 3 छोड़ के आज हम पूरा कर लेंगे, so that in the next class we can start with unit 3. समझ रहे हैं? ओके मैम। My point, because it's all related. जैसे हमने न्यूज की बात की, न्यूज के क्या डिफरेंट what makes something a news, so that all is related with principles of journalism. Actually they are all overlapping topics. So I thought हम एक बार principles of journalism कर लेंगे. Other forms of writing भी है इसमें, जो हमने कल writing for media में discuss कर चुके हैं already. Article, feature, editorial, review and travelogue. ठीक है? So that will complete our unit 2. उसके बाद हम unit 4 के जो topics बच जाते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेंगे, and maybe अगर आज ये सब हो जाता है, so from the next class we can start with beat reporting. That is your unit 3. ओके मैम। Okay, agree all of you? Okay, so basically अगर हम principles of journalism की बात करें, तो it's not something new. As mass communication students of master, I am very sure कि आप लोगों ने already इसे discuss किया होगा किसी ना किसी पेपर में, because it's the basic Bible of journalism. Okay, अब हर प्रोफेशन होता है, अब उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स होते हैं, एंड द सेम इज द केस विद जर्नलिस्ट. ठीक है? अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, आपने सुना है उनका ओथ होता है, they take that oath, है ना, that they will not let any personal वो come into their profession, they'll treat every patient equally and all that. Okay, उसी तरह से जब हम journalism की बात करते हैं, there are certain principles and ethics that are associated with this occupation. And what are those? I'm very sure कि आप लोग सबको already you must be aware of them. We'll just brush them up once. So what are the principles of journalism? Raise your finger and then you can. वरना सब एक साथ बोलेंगे ना तो you won't be able to hear any. What is the basic principle? मैम independence. Okay. Then ma'am fairness and Yes. Yes, hello. Pallavi. Ma'am, no biasness. Okay, the journalist has to be very objective in his dealings. And what else? Humanity ma'am. Okay, humanity. What next? Accountability. Accountability. Okay. मैम मुझे What इतना ही else? पता। Okay, anyone else? Ma'am, trustworthy. Yes. Trustworthy. Trustworthiness. Ma'am, Okay. Factually, you have to be correct. Yes. Truth and accuracy is important. Okay. Truth and accuracy. What else? So the true picture. तो कहीं ना कहीं जो भी हमने डिस्कस करा, जो भी पॉइंट्स, they are all related with the fact that the news has to be very truthful. आपको ट्रू पिक्चर पेश करनी है. ठीक है? अब ऐसा तो नहीं होता कि आप कोई जर्नलिस्ट जो है वो गलत चीज, मतलब गलत इन द सेंस कोई he'll report something जो फैक्चुअल नहीं है. ठीक है? फैक्ट्स को तो लेकर वो रिपोर्ट करते हैं, बट आपने देखा है आजकल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेशली बात करें तो ट्रुथ तो है वहां पे, बट आपको नहीं लगता इट्स काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड ट्रुथ या मैनिपुलेटेड ट्रुथ? डू यू अग्री? यस मैम। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फैक्ट से न्यूज जो उठाता है वो ट्रू है, बट उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं जैसे पड़ोस की आंटियां होती हैं वो नमक मिर्च लगा के बात करती हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दैट प्रोवर्ब? Yes, ma'am.
तो वो जो काम है वो एज जर्नलिस्ट हमें वो नहीं करना है. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर क्या नहीं करना है. अगर उसको आपको देखना है किस तरह रिपोर्ट नहीं करनी है, तो आई हैव टोल्ड यू देयर आर एम्पल चैनल्स. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें तो एक दो चैनल को छोड़ के बाकी सारे आप देख लीजिए, तो रिपोर्टिंग कैसे नहीं होती है वो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो हमारे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म है, दे आर रिलेटेड with one point which is based on objectivity, accuracy and fairness. These are the three basic terms. अगर आप इन पे स्टिक करके अपना न्यूज रिपोर्ट लिखेंगे तो it will be true और it will be fit to be published. तब आप अपने जर्नलिज्म के सारे एथिक्स फॉलो करें. ठीक है, उसके बाद राकेश ने या किसने अभी बोला था इंडिपेंडेंस. यस मैम. What do you mean by that? Yes, what do you mean by that? Independence Ma'am, from what? मैम किसी भी टॉपिक को लेकर हमें स्वतंत्र होना है. हम ये नहीं कि उसका फेवर करते हुए चुप हो जाए उस मुद्दे पर. हमें बोलना है, लोगों को बताना है. ठीक है, बट हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस? हाँ, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंस किससे चाहिए? अगर आप आज की मीडिया की, हमारी भारतीय मीडिया की हम बात करें तो आपको क्या लगता है? इज इट इंडिपेंडेंस? इज इट नो मैम, नो मैम, नो. I can 80-20%, 80-20. हाँ, इट्स अ रेशियो. कुछ चैनल्स न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है और फिर मैम उनके साथ होता भी क्या है वो सबको पता है. बट हाँ, बेसिकली अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया में जो प्रॉब्लम रही है शुरू से, यहाँ पे हमारे मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल कंट्रोल में रहा है. हमेशा से रहा मैम. ट्रू मैम. हाँ, अगर हम यूएस की बात करेंगे वहां पर डिफरेंट सिनेरियो है. वहां पे आप देखेंगे मीडिया बहुत स्वतंत्र है गवर्नमेंट कंट्रोल से, बट वहां पे प्रॉब्लम है बड़ी कॉर्पोरेट्स की, बड़ी कंपनीज की, बड़े बिजनेसमैन की, जो 80 to 90% ऑफ द मीडिया के ओनर है. ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि यूएस की प्रेस बहुत अच्छी है क्योंकि वो फ्री है. नहीं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री है, बट एट द सेम टाइम जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, वो उनके कंट्रोल में. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स, अगर आप वहां ओनरशिप, कौन बीच में कोई बोलता है जिसका मुझे चेहरा नहीं दिख रहा. आई मीन आई कैन ओनली हियर द ऑडियो, तो फिर वो ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. विदाउट द फेस ऐसे आवाज आ रही है तो. मैम मैं गोविंद, मैं बोला हूँ मैम. हाँ मैम, मैं कह रहा था कि मैम यहाँ पर तो इनडायरेक्ट रूप से, यस मैम, मैं कह रहा था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट तो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पर नहीं है. गवर्नमेंट कंट्रोल में मीडिया पूरी मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है या वॉइस नहीं आ रही गोविंद की मैम. हाँ, आवाज नहीं आ हाँ, रही है, कट कट के आ रही है. अच्छा, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम है इंटरनेट में या. हाँ मैम, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी. ओके, हेलो, यस यस, अब जा रही है मैम आवाज? हाँ हाँ, अब थोड़ी आ रही. यस, बोलिए आप. हाँ मैम, मैं कह रहा था कि जी, मैं कह रहा था कि यहाँ पर तो भारतीय मीडिया तो इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन इससे भी ज्यादा तो मैम चाइना में, वहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल में है वहाँ की मीडिया. वहाँ तो और भी खुल के बोलने की आजादी नहीं होती. हाँ, खुल के, हाँ वो तो ठीक है, बट हम अभी बेसिक जो दो डेमोक्रेसीज हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन एंड यूएस. क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, लोग समझते हैं क्योंकि यूएस देखेंगे वहां पे लोग, बड़े बड़े अखबार जो हैं वो उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ, बट तो लोगों को ये हो जाता है कि वहां पे मीडिया जो है फ्री है. एक गलत धारणा उनके दिमाग में बन जाती है, विच इज नॉट ट्रू. वाई? क्योंकि वहां पे मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल से हमेशा से फ्री रहा है, वहां पे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम वहां पे क्लास डिफरेंस है. वहां पे जो सबसे ज्यादा रिच बिजनेस क्लास है
उनके पास 80 to 90% जो है मीडिया की ओनरशिप। तो आपको लगता है उसके बाद इंडिपेंडेंट हो सकती है मीडिया जब 80% 90% ही एक बिजनेस ग्रुप के अंडर में है या दो बड़े बिजनेस ग्रुप में? तो कहीं ना कहीं वो अपना, ठीक है वो डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं, वो ट्रम्प के खिलाफ लिखेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल आई रेड अ स्टोरी ऑन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, अब वो जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऑर्गेनिक फूड्स को प्रमोट कर रही हैं, व्हाई? क्योंकि उन्होंने उस पे कोई अपना बिजनेस चेन स्टार्ट की है। तो वहां पे जो न्यूज़पेपर होगा उसमें वो ऑर्गेनिक फूड्स की तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा है, एंड आप जंक फूड को छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं वो अपने फायदे के लिए मीडिया को यूज करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, राइट? यस राकेश। मैम वो दौर चला गया जब इंडिया में मीडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। लेकिन आजकल एक अलग सिनेरियो है। एक्चुअली आज हम ऑनर से परेशान है। आज मीडिया के पत्रकार जितने भी हैं वो ऑनर से परेशान है। अगर आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हो तो आप काम करो, नहीं तो जाओ घर। ये वाला पॉलिसी है। वो गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के समय में ही खत्म हो चुका था। वो इतने सारे पॉलिसी वगैरह आया, वो खत्म एकदम था। अब वही प्रॉब्लम है कि हमें ऑनर काम करने नहीं देते। वो जो गाइडलाइन तय करते हैं हमें उससे काम करना। हाँ, तो ओनर किस हिसाब से गाइडलाइन तय करते हैं? उनका प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट से। हाँ वही, दैट इज माय पॉइंट। एक्चुअली दैट इज माय पॉइंट कि इंडिया और यूएस में आप डिस्कस करेंगे तो और जैसा आपने कहा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि लास्ट 4 to 5 to 7 ईयर्स में ज्यादा वो हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इमरजेंसी टाइम में जाकर देखेंगे ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रूल, उस टाइम पर भी मीडिया को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया था। कितने न्यूज़पेपर्स बंद हो गए थे, क्या क्या हुआ था। बट और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी टाइम में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल है। गवर्नमेंट हमेशा से, स्पेशली इन रेफरेंस टू इंडियन मीडिया, गवर्नमेंट हमेशा से चाहती है कि कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में रहे मीडिया। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में उस चीज की परसेंटेज बढ़ गई है। इतना ब्लैटेंट नहीं होता था सपोर्ट जितना अब होने लगा। पहले भी होता था बट इतना नहीं। आप कह सकते हैं 30 to 40% होता था, बट आजकल आप देख रहे हैं बहुत, मतलब इट इज, पहले ये देखा जाता था उनका कोई फायदा है या शेयर्स हैं ऐसे बंदे के जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है या उसको सपोर्ट करता है। बट अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे इट हैज बिकम वेरी ब्लैटेंट। छोटे छोटे से फायदों के लिए उनको वो पोस्ट मिल गई, वो प्रेस उसके वो बन गए, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए। और इनफैक्ट बिना फायदे के भी लोग आजकल आप देख रहे हैं कि दे आर जस्ट सब। अब उस दिन मैं देख रही थी रिपब्लिक पे, देयर वाज अ वो जिसपे बहुत मीम्स बने हैं कि किस तरह से वो लोकस्ट थ्रेट जो हो रहा है कि पाकिस्तान से टिड्डियां भेजी गई हैं। सो डू यू थिंक these kind of news reports they even make sense to us? मैम जब पाकिस्तान नहीं था तब से टिड्डियां आ रही है यहाँ पे। कोई लॉजिक ही नहीं है। बेसिकली वही है कि लॉजिक की तो आप, पहले हम लोग कहते थे कि हिंदी फिल्म्स देखते हैं तो लॉजिक को घर छोड़ के जाया जाता है बिकॉज वहां पे वही गाड़ियां उड़ रही हैं, वो सब हो रहा है, लॉजिक की बात नहीं होती। बट आजकल आप रिपब्लिक या जी भी देखें तो इट्स बेटर कि आप लॉजिक उसमें ना ढूंढें। ओके, सो बेसिकली इसीलिए मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बारी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम जो ऑन पेपर पे पढ़ते हैं वो अलग चीज होती है, बट जो हम फील्ड में जाके ऑब्जर्व करते हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट, बट इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। ऐसा नहीं है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम रॉन्ग को रॉन्ग बोलने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आएगी। ओके, तो बेसिकली जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो वही जैसे हमने न्यूज स्टोरीज में पढ़ा था क्या क्या, व्हेन यू आर राइटिंग अ न्यूज स्टोरी एज अ रिपोर्टर और व्हेन यू आर सबिंग इट, सब एडिटिंग इट, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उसी पे बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। बस उसको थोड़ा हमने ब्रॉड और ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। ओके, द मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। जब अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हम पूरे मीडिया की बात करते हैं। जब हम एक सब एडिटर के काम की या रिपोर्टर के काम की बात करते हैं तब हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। ओके, सो हम उसको बस ब्रॉड कर देते हैं, बाकी प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं।
अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बाकी 4 कॉन्सेप्ट्स को आप उसी एक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में कहे अरे मैं तो ये करके आया था, यहाँ तो प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़ के आया था, ये तो इन्होंने पूछ लिया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग या व्हाट आर द एथिक्स दैट आर एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म। सो दे आर ऑल सेम, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रिंसिपल्स में बेसिक चीजें हैं, फैक्चुअल एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, नॉन बायस। ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. इंडिपेंडेंस की ये याद रखिएगा, जब हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, independence is also from the ownership, from ad revenues जिन कंपनीज के हमें मिलते हैं उनसे भी इंडिपेंडेंस जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, बिग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स दे ओ अ लॉट ऑफ मनी टू सम ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे गिव फुल पेजेस एड टू दोज न्यूज़पेपर्स। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इनके खिलाफ, उनके प्लांट में कुछ हो गया, उनके प्लांट में इतने मजदूरों के साथ ऐसा हुआ या उनकी केयरलेसनेस की वजह से डेथ हो गई, बट दे कैन नॉट राइट एनीथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज दे गेट रेवेन्यू फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ एड्स एंड ऑल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, बेसिकली इट्स अबाउट गवर्नमेंटल कंट्रोल, बट अदर देन दैट ओनरशिप पैटर्न एंड एड रेवेन्यूज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट। क्लियर? और इसीलिए कहा जाता है बार बार कि छोटे न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, नेटिव लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनको ज्यादा पुश मिलना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं मीडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रहे, राइट? और अब तो जब से सोशल मीडिया आया है, इट हैज बिकम ऑल द मोर इजियर। ठीक है, आजकल हैव यू हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट सिटीजन जर्नलिज्म? व्हाट इज दैट? या पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म, व्हाट इज दैट? अब तो सबके पास वो जियो के सिम्स हैं, 2-3 GB फ्री है पूरे दिन के लिए, तो एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट दीज डेज। बट एट द सेम टाइम you are responsible for whatever content you are posting on. वहां पे भी आप देखिए, it should be true, it should be accurate, it should not be something which is not based on facts and truth. जैसे the other day I was reading an article on Amitabh Bachchan that they have compared him to uncles on WhatsApp groups जो बिना किसी भी न्यूज को वेरीफाई करे, they just forward। देखें, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं, शनिवार के दिन ठीक 7 बजे ऐसा होगा और ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे 10 लोगों को तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। ओके, सो बेसिकली ठीक है, सोशल मीडिया इज अ ग्रेट, मीडिया एज सच इज ग्रेट पावर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपके पास अभी सोशल मीडिया है, बहुत सारी गलत चीजों को पे आप लोगों का ध्यान ला सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ये एक रॉन्ग न्यूज बहुत सारी गलत चीजें कर सकती है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म और लोकल जर्नलिज्म और पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म बेसिकली। क्लियर? अब तो आप देखेंगे, आई थिंक 70% ऑफ द न्यूज दैट इज डिसेमिनेटेड इज because of social media. आजकल कौन न्यूज़पेपर्स या हार्ड कॉपीज, I don't think people go for that. Right. नहीं, ये छोड़ दीजिए। Okay? ATM. Okay? Clear on Yes, that? ma'am. यस मैम, क्लियर। तो इट्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जब आप न्यूज़पेपर के लिए स्टोरी लिख रहे हैं वहीं पे अप्लाई करना है। Okay, apply them to your social media posts also. Clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are left with principles of journalism. Then other forms of writing: article, feature, editorial, review, travelogue. ये हमने already कल discuss कर लिया है. If you want, we can discuss it once again.
फीचर, एडिटोरियल्स, रिव्यूज, ट्रैवलॉग्स में क्या डिफरेंस है? Who will explain? कल का पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार. How are features different from news reports? Who will explain? News reports. Yes, Amir. यस मैम, देख रहा हूँ पीछे आपने क्या पढ़ाया था. तो वहां मत देखिए ना, दिमाग में देखिए ना पीछे. मैं You were एक्चुअली there in रिवाइज the नहीं कर class. पाया, रिवाइज नहीं कल किया था आप मैम. वैसे पता है मुझे आप क्या पूछना हाँ वही पूछो मैं बता. कह रही हूँ, वो मत देखिए, आप खुद ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना. अगर आप हिंदी में इंग्लिश जैसे भी करना मैम चाहें फीचर, वो भी बोल मैम फीचर में आपने बताया था फीचर राइटिंग में कि जैसे हम लोग कोई स्टोरी को रिक्रिएट करते हैं और उसको सर्च करके फिर हम लोग उसको लिखते हैं, उसमें हमें टाइम चाहिए होता है, उसमें कंटेंट ज्यादा होता है. और जैसे न्यूज राइटिंग में हमें ऑन द स्पॉट देना होता है, तो उसमें हम लोग शॉर्ट कंटेंट लिखते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो हमारी न्यूज राइटिंग हो जाती है. उसके बाद आपने क्या बताया अगला? बेसिकली जब आप इसको एक्सप्लेन मैं करेंगे, फीचर सिर्फ आपका पॉइंट में मतलब आपको समझ में आ गया है, बट आपको उसको एक्सप्लेन कैसे करना है. जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट. यस. ओके. यस राकेश. मैम एक्चुअली सॉफ्ट न्यूज और हार्ड न्यूज की कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच. और ट्रैवल लॉग और फीचर राइटिंग सॉफ्ट न्यूज है, जो हम एक वीक का समय ले सकते हैं, 2 वीक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लिखेंगे, कभी भी वो प्रिंट हो सकता है. लेकिन हार्ड न्यूज जो है वो डे बाय डे नियरनेस होना चाहिए, क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं अगर हम बाद में उस चीज को लिखें, लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो बेसिक हार्ड न्यूज कॉन्सेप्ट इज इसका. बेसिकली फ्रंट. हाँ, हार्ड न्यूज इज बेसिकली फ्रंट पेज न्यूज ऑफ द न्यूज़पेपर. ये बेसिक ओके. पॉइंट. एंड हाँ, जो डिफरेंशिएशन का है. सॉफ्ट न्यूज इज एनीथिंग दैट कैन बी रेड टुडे एंड आफ्टर 15 डेज. वो तब भी रेलेवेंट होगी और अभी भी रेलेवेंट होगी. इट्स नॉट टाइम बाउंड एक्चुअली. ठीक है. तो दैट इज द बेसिक. उसके अलावा फीचर्स आर आल्सो नोन एज द क्रिएटिव साइड ऑफ जर्नलिज्म. व्हाई? वहां पे आपको, जैसे हमने हार्ड न्यूज के लिए करा कि वहां पे यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, आपको अपनी फीलिंग्स को जगह नहीं देनी है. द लैंग्वेज हैज टू बी वेरी फॉर्मल विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लावरी वर्ड्स, एडजेक्टिव्स एंड ऑल दैट. बट एट वहां में फिक्शन नॉन फिक्शन का यूज हम कर सकते हैं ना सॉफ्ट न्यूज में. हाँ, फीचर में तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाँ, आप किस तरह से उसको लिख रहे हैं. ठीक है. बट फिर मैं वही करूंगी कि फिक्शन इज, जब हम न्यूज स्टोरीज की बात करेंगे, चाहे वो सॉफ्ट न्यूज हो, हार्ड न्यूज हो, फिक्शन डज नॉट फाइंड वे. फिक्शन तो फिर एक अलग जॉनरा हो गया, वो न्यूज़पेपर्स में नहीं होता. फिर वो तो आप जो ये वाली मैगजीन्स होती हैं, गृह शोभा और ये सब, उसमें आप देखेंगे स्टोरीज वगैरह होती है. ठीक है. बट फीचर में भी, फीचर्स आर बेसिकली अ थिंग व्हिच इज इन बिटवीन हार्ड न्यूज स्टोरीज एंड फिक्शन. उनके बीच का एक जॉनरा है, राइट? और उसमें फीचर में दे आर सिंपली, जैसे हमने बात की थी, व्हाट आर द डिफरेंट. जब आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स क्या है, तो आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. लाइक हमने बात की थी ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स. फीचर्स बहुत ज्यादा, आप अगर बीबीसी या डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे जाके, वो कहीं ना कहीं दे आर द इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट्स ऑफ रिटन फीचर्स. ठीक है. इंदिरा गांधी पे कोई डॉक्यूमेंट्री है तो आप उसको एज अ हिस्टोरिकल फीचर और एज अ बायोग्राफिकल फीचर ट्रीट करते हैं. ठीक है. फिर हमने बात की थी नो हाउ और इंफॉर्मेशनल फीचर की. तो आप देखिए डॉक्यूमेंट्रीज जैसे वर्ल्ड वॉर 2 पे है, या हमने कोविड डिस्कस किया था, कैसे उसका ओरिजिनेट हुआ कोविड, या वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वर द रीजंस दैट जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को लाया था. वो उस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? नो हाउ, इंफॉर्मेशनल और इवन हिस्टोरिकल फीचर्स. हिस्टोरिकल. समझ रहे हैं? हाँ. बट अब बहुत सारी, जैसे आपने अभी फिक्शन की बात की थी, तो वो एक राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई डाउरी के ऊपर फीचर लिख रहे हैं, उसमें आपने स्टार्ट किया एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से जो कि फिक्शनल है, कि किस तरह से एक
a woman is dead because of dowry and her parents are talking about her. तो ये मैम आपने एक उसको एडिटोरियल fictional angle देके and then you came to the meet. Yes, who was it? मैम Continue. मैम हाँ, मैं बोल रहा था कि मैम फिक्शन का तो यूज हम एडिटोरियल पेज में भी करते हैं, जब कोई एडिटर होता है, जब वो खुद से क्रिएटिविटी करता है या खुद से अपने अंदर एक क्वेश्चन अराइज करता है, तो फिर तो उसको फिक्शन में कन्वर्ट करके उसको लिखता है ना, फिर कुछ बातें उसमें हाँ, वो मैंने आपको बताया, जो एडिटोरियल वही पेज मैं होता आपसे है। कह रही हूँ ना, इट डिपेंड। हाँ, ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंगल लेना चाहते हैं, किस तरह से लिखना चाहते हैं। ओके, एवरीबडी हैज, अगर मैं आपको अभी एक टॉपिक, राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा ना, एवरीवन हैज देयर ओन राइटिंग स्टाइल एंड दैट इज व्हाई पीपल आर इम्पोर्टेंट। अगर एक ही, मतलब सब एक सा ही लिखते तो कोई 10 लोगों को जॉब नहीं देता ना अपने ऑफिस में, एक बंदे को देता, उसी से सारे 10 आर्टिकल्स लिखवा लेते। So that difference in the creativity, in the thinking level of every individual is different. अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और वैसे भी आजकल तो कस्टमाइजेशन का जमाना है, देखा है आपने, इवन बच्चों के जो बायजूस ऐप पे देखिए, जो ये वर्कशीट डिजाइन होती हैं, वो भी आपके मतलब इंडिविजुअल की नीड्स के ऊपर डिजाइन होती है, राइट? आपको मैथ्स की ज्यादा चाहिए, काउंटिंग का ज्यादा चाहिए, कलरिंग, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट स्टाइल, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई जब हम यूनिट 3 करेंगे तो उसमें हाउ आर डिफरेंट बीट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। somebody is a political reporter, somebody writes on culture and music and all that, somebody writes on political scenario, सबका अलग अलग अपनी बीट होती है। ओके, और बाकी जैसे हमने डॉक्यूमेंट्री की बात की, बट देन देयर आर डॉक्यू ड्रामास। आपने देखा है सब टीवी वगैरह पे ये जो सारे शोज आते हैं क्राइम वाले, उसमें क्या होता है, वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको ड्रामा की तरह दिखाते हैं ना, उनको फिक्शनलाइज करके। अंडरस्टैंड, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यू ड्रामा। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, दैट इज, इट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, बट साथ में उन्होंने उसमें थोड़ा सा फिक्शन भी ऐड कर दिया है। तो फिर मैं वही कहूंगी कि कोई भी कैटेगरी अपने आप में पूरी नहीं होती है। आप कहते हैं नहीं ये हार्ड न्यूज है 100%, ये 100% सॉफ्ट न्यूज है, ऐसा नहीं होता। देयर आर थिंग्स इन बिटवीन देम एंड इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द राइटर, ऑफ द एडिटर हु इज राइटिंग। मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? Yes. Okay. A new connection. There's some problem. Basically, are you able to hear me? Yes, ma'am. So basically, it is for the writer to ensure कि वो किस तरह का एंगल लेना चाहता है और कैसे लेना चाहता है, वो आपके ऊपर है। बट जैसे कि हमने पहले बात की, आपकी राइटिंग का पर्पस तब तक हल नहीं हो रहा है। आपका बेसिक पर्पस क्या है लिखने का? टू कम्युनिकेट, टू मेक पीपल रीड इट। तो जब तक वो एक अट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, अपना पर्पस हल नहीं होगा, पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड इट। ओके, सो बेसिकली आपको अपनी राइटिंग को, ठीक है, आप डिफरेंट जितना करना चाहे कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी अट्रैक्टिव कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें। ठीक है, अगर आपने बोरिंग या इस तरह की लैंग्वेज लिखा है, तो जैसा हमने न्यूज रिपोर्ट So basically, जैसे हमने न्यूज रिपोर्ट्स की भी बात की थी, इफ इट नॉट रिटन इन एन अट्रैक्टिव मैनर, पीपल आर नॉट गोइंग टू रीड इट। और फीचर्स में तो ज्यादा आपके ऊपर वो आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई? बिकॉज फीचर में आपके पास क्रिएटिव होने का मौका है, न्यूज राइटिंग में तो आप क्रिएट नहीं हो सकते। एंड सेकेंडली, फीचर्स आर लॉन्गर इन लेंथ,
तो उसमें पूरे वर्ड्स पूरे 3 पेजेस तक आपको लोगों को उस चीज के साथ बांधे रखना है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अंडरस्टैंड? न्यूज स्टोरी तो एक पैरा 2 पैरा के बाद इट हैज टू फिनिश, बट फीचर में आपके पास ज्यादा वर्ड है, ज्यादा वर्ड लिमिट है, और क्रिएटिव होने का भी आपके पास मौका है. सो यू हैव टू बी more inclined towards being creative and to make it more attractive in order to make sure that people read it. Clear? और जैसे हमने कल yes, और जैसे हमने कल बात की, the basic difference between features and news stories is other than language, length, everything, जो उनका format होता है. News stories do have a lead, then they have a main body, but they do not have any proper ending. देखा है आपने news stories में ending नहीं होती. But when we talk about features, features का intro होगी, lead, that is lead. जो लीड होती है उसको हम फीचर्स में इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रो. उसके बाद दे हैव अ मेन बॉडी, एंड इन द एंड यू नीड टू रैप इट अप इन अ वे कि वहां पे प्रॉपर एंडिंग हो. आइदर यू गिव सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर, बट आप उसको एब्रप्टली बीच में खत्म नहीं करते, प्रॉपर एंडिंग दी जाती है. क्लियर ऑन दैट? यस मैम. एडिटोरियल्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है. इट इज ऑन द whims एंड फैंसीज ऑफ द एडिटर. Somebody who has been in the field for 15 to 20 years, they are the newspaper, और वो उनके ऊपर होता है वो कैसे लिखे हैं. But at the same time, as readers, we should know that editorials are not hard news stories. They are not something that are factual. हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस टॉपिक पे ये जो एडिटर है इनकी राय है. ओके, ये इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं वो है. वी डोंट हैव टू ट्रीट इट एज अ न्यूज स्टोरी. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके. उसके बाद अगर हम ट्रैवलॉग्स की बात करें, ट्रैवलॉग्स आर सिंपली, आप ट्रैवल मैगजीन्स उठाकर देखिए, ट्रैवलॉग्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. वहां पर ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज, इमेजिनेशन, उस सब का यूज होता है. ठीक है. एंड बेसिकली इनका डिफरेंस समझने के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में, अब तो वैसे भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ज्यादातर के वर्जन्स हो. यस गोविंद, नींद आ रही है क्या आपको? नो मैम, आज मैं फास्टिंग में हूँ इसलिए. ओके ओके, ठीक है. क्लियर एवरीवन? यस मैम. एनी मोर क्वेश्चंस? तो in the second class we'll try to complete unit 4. ठीक है. एडिटोरियल रिव्यू, हाँ रिव्यू बचता है इसमें अभी जब हम बात कर रहे हैं. तो बेसिकली इफ यू वांट, वायर वगैरह पे जाके आप 1-2 फिल्म रिव्यूज एंड बुक रिव्यूज देख लीजिए. रिव्यूज का बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एडिटोरियल और फीचर्स में. ठीक है. अगर हम कोई बुक रिव्यू लिख रहे हैं तो वील स्टार्ट विद द नेम ऑफ द बुक, द राइटर एंड द पब्लिशर, कि इस पब्लिशिंग हाउस की ये बुक है. इसी तरह अगर हम फिल्म रिव्यू कर रहे हैं, वील स्टार्ट विद द फिल्म्स नेम एंड द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स. ओके. इंट्रो में बेसिकली ये चीजें आती हैं. क्लियर? यस मैम. उसके बाद आप अपने रिव्यू पे आ जाएंगे. और प्लीज, बहुत बारी मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, पीपल डोंट रीड समथिंग एंड दे ट्राई, और कोई फिल्म देखते नहीं है या बुक पढ़ते नहीं है और उसका रिव्यू लिखने की कोशिश. तो इट्स अ कार्डिनल सिन, प्लीज डोंट डू दैट. कि वो तो हम नेट से निकाल लेंगे और लिख देंगे. मैम यस. एक बार ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज का भी देख लेते हैं ना. ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज क्या है? टॉपिक नंबर बताएं. 2.3 मैम. ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज आप लोगों ने नहीं करा है अभी?
मैम वो पिछले सेमेस्टर में करा है तो याद नहीं रहा। चलिए ठीक है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। इसमें हम टाइप्स ऑफ न्यूज स्टोरीज तो मैंने बोला ही था कल के, एक बार रिवाइज कर लेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल और वो सब जो होता है उसके साथ ही इसको कर लेंगे। बाकी इंट्रोज हम कर चुके हैं, हेडलाइंस हमने अभी करना है वो इसमें है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव, इंटरप्रिटेटिव, एनालिटिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरिंग न्यूज, ठीक है। एक बार हम जब टाइम होगा तो उसको देख लेंगे। एक्चुअली Just मैम remind ट्रेडिशनल me. वगैरह क्या था, उतना पुराना न्यूज हमारे पास नहीं रहता ना, वो चेक कर लेते। अब तो ठीक है, एक बार हम कर लेंगे इसको भी। अभी फिलहाल हम रिव्यूज की बात कर रहे थे, ओके। तो रिव्यूज में प्लीज डोंट डू दैट until and unless you have seen that